Hello and welcome. I'm Shireen Aman and you're watching GKTV. Let's begin with the top news stories of the day. In the biggest update of the day, Prime Minister Narendra Modi, while addressing an election rally in Doda today, cautioned that restoring Article 370 in Jammu and Kashmir would lead to the loss of key rights and protections for the people. During the address, he also emphasized that such a move could potentially revoke reservations, voting rights, women's rights, and other educational opportunities. 35A वापस आई तो माताओं बहनों के हकों पर फिर वही पुरानी पाबंदी लग जाएगी। आप याद रखिए, इनके घोषणा पत्र लागू हुए तो फिर स्कूल चलने लग जाएंगे, फिर बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे, फिर हड़तालें होगी, कारोबार पर ताले लगेंगे। National Conference Vice President Umar Abdullah has responded sharply to Prime Minister Narendra Modi, stating that the Bharatiya Janata Party only criticized his party and its leaders when it was politically convenient. Mr. Abdullah remarked that the BJP did not label the National Conference or its leaders as bad when the party needed their support. जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए, पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। Congress leader Supriya Shrinathe affirmed the party's commitment to restore the statehood for Jammu and Kashmir. Shrinathe emphasized that the Congress party will persist in its efforts to achieve these objectives regardless of the challenges. क्या सोचकर, किस हिम्मत से, क्यों इन्होंने जम्मू कश्मीर से उनका स्टेटहुड छीना और एक यूनियन टेरिटरी बनाया, और अब आके कहते हैं हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस का ये वादा है, हमारी सरकार बनेगी एंड कम व्हाट मे, we will restore the statehood of Jammu and Kashmir because this is something you rightfully deserve. In a public rally organized for the Congress candidate Iftikhar Ahmed from the Rajouri Assembly constituency of Jammu and Kashmir's Rajouri district, Congress Member of Parliament Imran Pratapgarhi addressed the gathering as the chief guest. Mr. Pratapgarhi criticized the current government policies, labeling them as failures, and accused the BJP of operating on deceit, asserting that the party's slogans and statements are rooted in falsehood. मसला है, घास काट रहे हैं लोग। वो हमें तस्लीम ला चुके हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि दो ताकतें हैं इस देश में। लड़ाई दो विचारधाराओं की है, एक तरफ नफरत खड़ी है और एक तरफ मोहब्बत खड़ी है, और मोहब्बत में अपना नुमाइंदा बना करके इफ्तिखार अहमद साहब को आपके बीच में भेजा है। अलायंस की सरकार बनने जा रही है और रजौरी की इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट इफ्तिखार अहमद बहुत अच्छे मैंडेट के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। Meanwhile, the APNI party president Said Mohammad Altaf Bukhari continued his door-to-door campaign in the Nattipora area of Chanpora Assembly constituency today. वेरिफिकेशन बंद है, जिनका पासपोर्ट बंद है, ये एफआईआर किसने लगाए? ये तो उन्हीं सरकारों ने लगाए। अब जब मैं कहता हूँ कि ये तो नेशनल कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने लगाए, कहते हैं अल्ताफ बुखारी हम पे निशाना चूकता है। भाई किसको बोलूँ? दिल्ली वाले तो नहीं लगाने आए, लगाए तो आप लोगों ने। दिल्ली वालों ने डायरेक्टली यहाँ रूल किया है 2019 से, तब से तो नहीं मैंने किसी की आंखें जाती हुई देखी, मैंने कोई मरते हुए देखा। कम से कम इन्होंने इंसानों की जानें तो बचाई। In a major operation today, 3 militants have been killed in an encounter in the Patan area of North Kashmir's Baramulla district. The encounter had started late night yesterday. Inspector General of Police Kashmir Zone Vidhi Kumar Birdi said that the security forces are much alert and attentive to thwart the designs of anti-national elements, and said that the militants won't be allowed to disrupt the upcoming assembly elections in Jammu and Kashmir. जो एनकाउंटर है अभी जारी है, अभी इसको मुकम्मल होने में समय है
और इसमें कुछ टेररिस्ट का जो बॉडी साइट हो रहा है। ज़्यादा तफसीलात में अभी इस समय मैं मुनासिब नहीं समझता कि साझा की जाए। जब ये मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद उसको आपसे साझा किया जाएगा। पूरे लॉजिस्टिक का इस्तेमाल किया गया, लाइक ड्रोन जो है, बाकी सब चीज़ें जो थी, तो क्या ड्रोन के हिसाब से जो एक बॉडी जो है उसमें एक मिलिटेंट जो है सस्पेक्टेड देखा जा रहा है, क्या वो ऑथेंटिक है? देखिए, ये ऑपरेशनल डिटेल्स होता है तो मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। अभी इस चीज़ के बारे में जो तज़किरा करना मुनासिब नहीं है, तो अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको इसकी डिटेल्स बताइए। सर, बताया जा रहा है रैली कुछ होने वाली थी इस इलाके में, तो क्या हम कह सकते हैं? देखिए, जैसा आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा वाइल्ड और वो रगेड टोपोग्राफी का इलाका है और ये पॉपुलेशन से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। ऐसा नहीं है कि थिक पॉपुलेशन में है, तो लिहाजा आप ये दो चीज़ों को जोड़ना अभी मुनासिब नहीं है। आगे ये तफ्तीश का मौजू भी है, आगे जब होगा तो आपसे वो डिटेल साझा की। Now let's check on the weather update. Today has been a pleasant day, however isolated showers are predicted during the night time and the meteorological department has predicted the weather to remain dry for few more days. That wraps up our news for today. Stay tuned for further updates. Have a great evening.